ईद का दिन हो और कोई मेहमान खास ना हो, ये हो नहीं सकता। आज के मेहमान खास में फिल्म टेलीविजन के मारूफ अदाकार एहसन खान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो ईद किस तरह से मनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ओ भाई ले आओ यार, 2 घंटे से इंतजार करे, ईद का चल सारा दिन तो भाई। निकाल दिया तूने। पप्पू पहलवान बब्बर शेर चलो, शहजादा माशाल्लाह, चीता। बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का नाम लो। चलो मैं कहा अपना प्यारे हो, दिल बहारे हो। बकरा ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਯਕੀਨ माशाल्लाह, ਕਰੋ माशाल्लाह। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਹਲਵਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ नहीं नसीब होया, यकीन कर अच्छा, लो। मैं तुम्हें बड़ा अच्छा इसका गोश्त निकाल के दूंगा। अच्छा चलो, जी, शाबाश, बिस्मिल्लाह करो, गोश्त देर हो रही दोगे? है। हाँ हाँ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਆਮ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ 2 लाख रुपए यार, 2 लाख तो बकरा नहीं है। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं तो महंगाई सिर्फ तेरे लिए, मेरे लिए कोई महंगाई नहीं है ਉਹ यार। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ओ यार, ये कित्थों फड़े है? ਇਹ ਉਤੋਂ ਛਾਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ मेरी ਕਬੂਤਰ ਆ। जान, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, ईद मुबारक। खैर मुबारक। भाई आ गए। एहसन भाई कैसे हैं आप? यार अल्लाह का बड़ा करम है, हालत बड़ी जो है ना बुरी है सब लोग। एक तो ये लोग मिलते नहीं है, ਬਹੁਤ 2-2 3-3 घंटे बाद ही आ रहे। तो ऐसा कहते ही है। 2 लाख रुपया लेना ਉਹ है ਭਾਈ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾ? ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। बकरा ज़िबा करने का यार। ओए, इसको तो मैं ਉਹ जानता ਭਾਈ हूँ। ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ओए, ये ਉਹ तो ਭਾਜੀ आखिरी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ये नासिर मदनी साहब का बकरा ਨਾਸਰ ज़िबा ਮਦਨੀ करने। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 6000 ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। नासिर मदनी दी कुर्बानी की थी, उन्होंने बकरे दी की थी। बकरे की शुक्र है बकरे। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੇਖੀ राय देता जी। ਆ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਲਾਈ, ਮੇਰਾ ਖੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਲਫੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬੋਟੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਖੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈ, ਅੱਛਾ। ਇੰਜ ਲਾਈ ਜੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 10000 ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ 25000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾ। 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ यार ਹੋਗੀ। आप फैसला करें कितने पैसे देने चाहिए इसको। बस 10,000 काफी है। ਲੈ 10000 ਰੁਪਇਆ ਫੋਟੋ ਲਵਾਣਾ ਹੈ। 10000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਛੁਰੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। तेरिया मुच्छा भी फोटो वालियां नहीं गईं। ਦੱਸੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ 1 ਪਾਵਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਕਿਉਂ? 1 ਪਾਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। यार कोई मुनासिब करो यार, इतने बड़े सुपरस्टार है। ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ, ਯਕੀਨ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा किदा नाम ਇਹ है? ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। वो वजीर आला पंजाब ने हो। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। दूजा ना किधर? 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ। यार वो दे सकते हैं, बड़े लोग हैं यार, हम तो एक छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं यार, बस इतना ही काफी। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। यार ऐसे करो, जान छोड़ो। हेलो। ओ, दस गया बकरा। और बकरा भी नहीं, बकरा भी नहीं मान रहा। ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਣਗੇ ਈਦ ਤੇ? ਆਹਾ, ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾਏ ਖਮੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਕੁਲਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਲੜਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ। वहाँ चलो, अल्लाह का नाम है, चलो ज़िबा करो। ज़िबा करें? हाँ, 2 लाख रुपया डन हो गया। नहीं 2 लाख नहीं है ये, ले, मेरे ले, भाई 10,000 रुपया। हैं। ये बस जितना मेरे भाई ने कह दिया, वरना तेरी खबर और छाप पाए। नहीं उन्हें। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं बस यार 10,000 रुपये। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ 2 ਲੱਖ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,000 ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। 1,98,000 ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਬੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ मैंने ਸਕਦਾ। एक बात सोची है, अगले साल से ये काम हम लोग खुद करेंगे, बेहतरीन। क्योंकि सुन्नत भी है, हाँ। करना चाहिए, आना चाहिए, ताकि इनकी मार्केट डाउन करें। ये हर साल यार बड़े पैसे मांगते ये तो करोड़पति हो गए हैं। देखो यार, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ। चलो उन्हें मुकाओ। मुकाओ। ਕੀ ਮੁਕਾਓ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। 10,000 ਮੁਕਾਓ। 10,000 2 पावे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੋਣਾ, यार ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2 पावे कहते हो, तेन पता है बकरे दे पावे कितने महंगे ने? हाँ, हाँ जी। छोटे पावे ने। छोटे। ਅੱਛਾ ਜੀ। स्पेशल। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ?
ड्रामा मेहमान खास। हाँ, अच्छा, ये मेहमान वाला, ये खास। देखें, ये मेरे भाई आए हैं, हम शो रिकॉर्ड करेंगे अपना साथ। अच्छा जी, हाँ। बस ठीक है, फिर मैंने तुझे क्लिप सेंड करना। डन हो गया, ठीक तू है भी ना? उस क्लिप में आएगा। बस ठीक है, आवांगा ना मैं। हाँ, चलो 50,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चल। वो तो कट हो गए हैं। तू कर, शाबाश, शुरू कर। अच्छा। हम जरा अंदर जा रहे हैं, आते हैं। बस चलो ठीक है। चलो चलो, बिस्मिल्लाह। माशा- आओ यार, इसको जरा ਆ ਫੜ ਪੱਪੂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, क्यों? ਵੀਆਈਪੀ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, VIP ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੀਆਈਪੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਅੱਖ ਮਾਰ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਖ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਓਏ ਅੱਖ ਮਾਰ, ਐ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਰਟ ਹੀਰੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਨਾਲ ਸਲਾਦ, ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ, ਨਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਖਮੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? इंशाल्लाह, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, इंशाल्लाह। लो जी, डन हो गया। चलो, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। चलो। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਸਰ ਮਦੀਨੀ ਨੇ ਮੇਰਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਮੇਰਾ, उन्हें 10 मिल रहा है। ਹੈ? डबल हो गया 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ, 1,90,000 ਤੁਸੀਂ। पिछले साल तूने 6 लिया, इस साल 10 में ऑलमोस्ट डबल है यार। और चलो। क्या चाहिए तुझे? ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। चलो। ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀ? चलो बिस्मिल्लाह, जाओ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करिए जी, चलो ले जी हम चलें। आए आए जी, आए मेरे भाई, आए। अंदर आए, आओ अंदर जी। आए। एहसन साहब, बकरे का मसला तो हल हो गया, आप बताएं कि ईद कैसी गुजरती? ईद हमेशा आप जैसे भाइयों के साथ मिल करके, स्पेशली जब मैं लाहौर होता हूँ, आपको मालूम है कि कराची लाहौर आना जाना रहता है, बहुत अरसे से कराची में सारा काम चल रहा है। तो लाहौर में एक ख़ास मोहब्बत ऐसी है कि जब मेरा करियर शुरू हुआ, वो लाहौर से शुरू हुआ। लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री, लाहौर का टीवी स्टेशन, तो आप लोगों के सामने में आया, और आप और तमाम अपने भाइयों से मिलकर हमेशा बड़ी खुशी होती है। और वो ईद मेरे लिए ज़ाहिर है ज़्यादा स्पेशल भी होती है कि अपने पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती है। इस बहाने यहाँ पे फैमिली है, कज़न्स हैं, दोस्त यार पुराने हैं, तो सबसे मुलाकात, तो ये ईद बड़ी स्पेशल होती है लाहौर। तो बचपन की ईद कैसे होती थी? बचपन में जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक ख़ास बात जो हर बच्चे के साथ ये होता है कि वो जो जानवर घर में आते हैं, हाँ, एक तो उसकी एक्साइटमेंट बड़ी होती है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर उसको लेके फिरना, उसको लेके घूमना, उसको बाहर सड़क पे ले जाना, और मोहल्ले के दूसरे बच्चे जो हैं इलाके के, वो आपके साथ मिलके खेलते हैं, बकरे को तैयार करना, उसके लिए चीज़ें ख़रीदना, उसको खाना खिलाना। तो 2, 4, 5, 6 दिन जो ईद से पहले के वो पूरे उस जानवर के साथ गुजरते हैं। एक तो बचपन में आपको काम कम होता है, आप फ्री होते हैं, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू, तो वो भी एक ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। और अगर अल्लाह मौका दे ये सब कुछ करने का, तो वो बड़ा अच्छा ईद का सिलसिला रहता है, जानवरों का जाना और कटना और उसमें बच्चों का रोना, तो वो हमेशा की तरह ये हमारे साथ भी हुआ है। एहसन साहब, आपने फनी कैरियर का आगाज़ किया चाइल्ड स्टार से, हमारे सामने आप फिल्मों में आए, फिर टेलीविज़न, इतने सालों बाद भी आज भी आप उसी तरह से खूबसूरत और यंग हैं, इसका राज क्या है? यार राज तो आपने खुद ही बता दिया। मेरा ख्याल राज ये है कि बहुत छोटी एज में शुरू किया, और उसी तरह से लोग मुझे देखते आ रहे हैं, और अभी उस एज को पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन काम माशाल्लाह शायद ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर मैं टेलीविज़न पे किसी ना किसी सूरत में लोगों के सामने रहता हूँ। बल्कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो इस फील्ड से, वो कहते हैं यार आप एहसन ने पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर ड्रामे में नहीं आता तो किसी शो में नज़र आ जाएगा, शो में नहीं आएगा तो किसी फिल्म में नज़र आ जाएगा, फिल्म में नहीं आएगा किसी कमर्शियल में। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है और मेहनत का एक सफ़र है यार। और आई थिंक कि बड़ा ज़रूरी है एक आर्टिस्ट का अपने ऊपर ध्यान देना, ख़ुद को थोड़ा फिट रखना, कोशिश करना कि वो अपने मेयार, जो पिछला मेयार वो एक सेट करता है, उससे आगे बढ़ के हमेशा काम करने का। और मैं बड़ा एक शौकीन आर्टिस्ट हूँ, यानी मुझे काम वैरायटी के साथ करने में मज़ा आता है। मुझे किसी और तरफ मेरा ध्यान बहुत कम जाता है, यानी एक होता है ना एज एन आर्टिस्ट, काम को फोकस किया होता है, और हर वक्त इसीलिए काम में महव रहता हूँ। तो अल्लाह का बड़ा करम है यार, आपकी मोहब्बत है कि आपको मैं वैसे ही लग रहा हूँ जैसे आपने मुझे पहले देखा। अच्छा, जब जितने आप खूबसूरत लगते हैं देखने में भी और आप हैं भी, स्कैंडल बड़े बनते हैं।
अच्छा, अब तो मैं तो ये बोलूँगा कि वैसे आप क्योंकि मुझे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादातर मेरे बारे में लोग कहते हैं कि स्कैंडल्स नहीं हैं, क्योंकि अब शादी को माशाल्लाह 12-13 साल हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कमिटेड हों किसी से और आपने किसी को इज्जत दी हो, अपने घर एक इज्जत दे के आप लाते हैं, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि फिर आप उस कमिटमेंट में कायम रहें। तो वो यंग एज में या उससे शादी से पहले अगर कोई स्कैंडल्स बने तो वो तो फिर एक इनेविटेबल बात है। आपकी दोस्ती भी किसी ना किसी से हो जाती है, आपको शायद कोई अच्छा भी लगने लगता है, और कभी कभी ऐसे भी बातें निकल आती बिला वजह भी। अच्छा, आप कहते हैं कि लोगों को आप भी अच्छे लगते हैं और आपको भी तो कोई अच्छा लग सकता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई अच्छा लगा हो, इजहार भी किया हो आपने? यानी इट्स इम्पॉसिबल ना, अगर ये कोई आपके सामने बैठ के बोले कि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया या उसको कभी कोई अच्छा नहीं लगा या कभी इजहार नहीं किया, इट्स वेरी नेचुरल। मुमताज़ माजी की मशहूर अदाकारा इंडिया की, वो आपकी फ़ैन निकली। वो कहती हैं अगर 25 साल पहले वो आपको मिलती तो आपके साथ फिल्म करती। मुलाकात कैसे हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? मुमताज़ साहिबा से हमारी अक्सर बातचीत रहती है और गपशप भी रहती है, और भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर दोस्त भी हैं। और लंदन में थी अभी, क्योंकि मैं भी आई वाज इन लंदन ऑल्सो, तो उन्होंने दावत दी, उनके घर में मौजूद था। तो फिर वहाँ पे यूट्यूब पे मेरी फिल्म जो अभी रिसेंटली लगी है रहबरा, उसके सॉन्ग्स देख रही थी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। अभी तो आपके पास शायद एक छोटा क्लिप आया है, और हमारी काफ़ी देर, हम तो 3-4 घंटे हमारी मुलाकात ऐसे गपशप होती रहती है। कल भी मेरी उनसे बात हो रही है। उसके अलावा आई रिमेंबर जब उडारी ड्रामा बहुत हिट हुआ और उसने बहुत, उसकी गूंज थी पूरे माशाल्लाह। यूएस में मुझे बुलाया गया एक सर्टिफिकेट्स और अवार्ड देने के लिए। हिंदुस्तान से बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे। आदित्य पंचोली ने बहुत एक मैसेज भेजा, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। अलका याग्निक साहिबा ने मैसेज किया, और फिर बड़ी जी हाँ काफ़ी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बड़ी तो रब की ज़ात है, आर्टिस्ट का एक्सपोजर जितना होता है वो उतना बड़ा होता चला जाता है। पाकिस्तान के आर्टिस्ट आर मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी टैलेंटेड, इनका कोई मुकाबला नहीं दुनिया भर में कर सकता। चाहे वो हमारे आप स्टेज के आर्टिस्ट ले लें, चाहे फिल्म के ले लें, ड्रामा के ले लें, माजी के ले लें, अब के ले लें। अच्छा, ऐसा आपको हमने देखा टेलीविज़न पे, आप बहुत से पुराने आर्टिस्टों के अंदाज में रक्स भी करते थे, डांस भी करते थे। खुद को आप कैसा हीरो देखना चाहते हैं? चॉकलेट हीरो, रोमांटिक हीरो या एक्शन हीरो? अच्छा, मुझे देखिए, मैंने कभी आपने बड़ा अच्छा ये बात की कि मैं जब नया आया तो यहाँ पे स्टेज के जो शोज़ होते थे उसमें लड़के जो थे वो बड़ा कम परफॉर्म करते थे। शायद क्योंकि फिल्म्स हमारी ऐसी थी जिसमें परफॉर्मेंसेस लड़कों, मेल वॉइस में गाने बहुत कम बनते थे, ख़वातीन की वॉइस में, मैडम की आवाज़ में, या हुमैरा साहिबा की या नसीबो साहिबा की आवाज़ में ज़्यादा गाने होते थे। और ख़वातीन, आपने देखा कि बड़ा वो एक हंसते भी कि आदमी खड़ा हुआ और लड़कियाँ इर्द गिर्द डांस करें, तो यूजुअली ऐसे डांसेस। सो वो जो उससे पहले का दौर था, नदीम बेग साहब वाला या वहीद मुराद साहब वाला, मोहम्मद अली साहब वाला, और भी बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छे सॉन्ग्स और बड़े फास्ट और लवली डांसेस, एंड दे डन समथिंग रियली नाइस इफ़ यू लुक एट दोज सॉन्ग्स। सो मुझे ये था कि यार इस तरह का, क्योंकि मैं खुद को उस तरह का हीरो कंसिडर करता था। मुझसे ये जो टिपिकल पंजाबी काम था ये होता नहीं था, ना ही मैं लगता था कि मैं पंजाबी। मैं अपने आप को लैकिंग मेरे अंदर, मैं ये नहीं समझता कि वो कुछ ऑड कर रहे हैं। मुझे लगता था कि यार मेरे अंदर ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि मैं कुछ ज़्यादा ही रिफाइंड या ऐसा चेहरा है कि वो जो एक आता ना गुस्से वाला, वो आता नहीं है मेरे अंदर वो चीज़। मैंने ट्राई भी किया 1-2 फिल्में इस तरह की करने की, लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं वो काम उस तरह का। बट दैट वाज माय लक दैट आई हैड टू शिफ्ट टू टेलीविजन बिकॉज ऑफ दैट। सो वो पुराने गाने निकाल के उनमें दोबारा से उनको रीमिक्स करके डांसेस करने का ट्रेंड मैंने ही शुरू किया। और मुझे याद है कि उन शोज़ में जब 4 फीमेल वॉइसेस में परफॉर्मेंसेस होती थी और सिंगर्स होते, तो एक मेल मैं ज़रूर एक वहीद मुराद साहब की पसंद करते थे। जी हाँ, कोको करीना और इस तरह के पुराने गानों पे डांसेस करना, तो वो एक रेगुलर कांस्टेंट चीज़ बन गई कि व्हेनेवर देयर वाज एनी शो हैपनिंग इन इस्लामाबाद, हैपनिंग इन लाहौर, कराची, और किसी भी सिंगर को ट्रिब्यूट है, एक्टर को ट्रिब्यूट है, कुछ भी है, तो मुझे ज़रूर उसके लिए बुलाया जाता था। अच्छा, आपने फिल्म भी की, टेलीविज़न भी किया, अब आप टीवी कर रहे हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि आपने अपना शहर लाहौर जो है वो छोड़ दिया, कराची चले गए। कैसा मेयार है, कैसी प्रोडक्शन है, कैसी कहानियाँ? लोग तो तनकीद करते हैं,
आपको कैसा लगता है जो आज का ड्रामा है? अच्छा देखिए, तनकीद करना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक कोई तनकीद ना करे, वरना तो आप स्टेल हो जाएंगे ना। एक आपको चीज़ एक अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, वो 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल तो हम देख लेंगे, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब उसे ग्रो करना चाहिए। तो ये जो तनकीद होती है वो हमारी आपकी ग्रोथ में बड़ा उसका हिस्सा होता है। तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई फील कि इस वक्त जो हमारा टेलीविज़न है उसका मेयार बहुत बुलंद है, और हम इंटरनेशनली हॉलीवुड का या बॉलीवुड का या टर्किश या दूसरे ज़रूर प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन आप देखिए उनमें उनके मुल्कों के और उनकी सकाफ़त के रंग नज़र आते हैं। हमारे ड्रामे में हमारा ही रंग नज़र आता है, चाहे वो मैसेज का हो, चाहे वो एक एलीट क्लास के बारे में स्टोरी हो, लेकिन उसमें पाकिस्तानियत ज़रूर नज़र आती है हमारे ड्रामों में, हमारे घरों में, हमारे डायलॉग्स में, हमारी अदाकारी में। तो वो हमारा एक स्टाइल है। हाँ, स्टोरी की इम्प्रूवमेंट में हमेशा मार्जिन होता है। आप जानते हैं कि जब एक चीज़ हिट होती है तो उसकी जैसी 50 चीज़ें बनती हैं, तो फिर नेचुरली लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप ये हर प्ले में कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करता हूँ तो मेरी कोशिश ये हमेशा रही है, स्पेशली चंद सालों से, 5-4 सालों से, कि मैं 10 साल मैंने 8 साल बिल्कुल एक रोमांटिक और लव बॉय का कैरेक्टर किया, एक अच्छा गुडी गुडी लड़का जो है वो कैरेक्टर मैंने बहुत किए। उसके बाद मुझे खुद को लगा कि यार आई हैव टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट, आई हैव टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया मैं करूं। तो फिर जब मैंने उस नेगेटिव कैरेक्टर्स भी करना शुरू किया और वो बड़े अप्रिशिएट हुए। अभी जो मेरे 2 प्लेज चल रहे हैं, अगर आप फ्रॉड, जी हाँ, फ्रॉड चल रहा है, बहुत वो मकबूल है। जी हाँ, बड़ा मकबूल प्ले है। सबा कमर उसमें और मिकाल हैं उसमें, हमारे साथ अस्मा अब्बास हैं, नईमा हैं और साकिब खान डायरेक्टर हैं उसके, और हमारे एक ज़बरदस्त चैनल पे वो चल रहा है। उसमें मैंने एक बड़ा कॉन मैन नेगेटिव कैरेक्टर जो लड़कियों के साथ फ्रॉड करता है, और ये बड़ी एक मसला होता है इस तरह की। हमारे पास एक मोहम्मद अली साहब ने कैरेक्टर भी किया था, एक फ़िल्म भी बनी थी बहुत साल पहले। सो ये मुझे कैरेक्टर बड़ा पसंद आया, करने के लिए, अदाकारी के लिए बड़ा मार्जिन था इसमें। दूसरी तरफ मेरे हमनशीन एक प्ले चल रहा है जो कि पठान बैकग्राउंड पे है, सवात में शूट हुआ है, और उसमें हमारी लैंग्वेज है वो कुछ पख्तून जो उर्दू बोलते हैं, थोड़ा ऑब्वियसली लार्जर देन लाइफ है, हमने एग्जैजरेट भी उसको किया है, लेकिन वो भी सुपर हिट जा रहा है और बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये हुई है कि मैं वैरायटी अपने काम में ज़रूर देखूँ। एहसन खान को वो किरदार मिल गया जो वो करना चाहता था ज़िंदगी में? यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कौन सा किरदार करूँगा। एक होता है ना आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है। आप आज भी मुझसे पूछेंगे क्या ख्वाहिश है, तो बड़ा ये मेरे लिए मुश्किल सवाल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ आप मूव ऑन करते हैं और आपको जो कैरेक्टर अच्छा लगता है, और बड़े हम ब्लेस्ड हैं यार कि मेरे पास 3 स्क्रिप्ट्स आते हैं और मैं उसमें से एक चूज़ करता हूँ और बाकी मना कर देता हूँ। ये भी एक अल्लाह की करम नवाजी है कि आपके पास लोग आ रहे हों कि आप को कास्ट करना चाहते हैं, ये मालिक का करम है बड़ा। तो हम लोग अपने कैरेक्टर्स को चूज़ भी कर लेते हैं और उसको बना भी लेते हैं, और फिर जब हम बनाते हैं तो बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। तो ये आई थिंक ये मेरी बड़ी एक गुड लक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा सारी ज़िंदगी बरतानिया में गुजारी, पाकिस्तान आए और एक्टर बन गए, वहाँ पे क्या कुछ किया? अच्छा, क्योंकि बचपन वहाँ पे ज़्यादा गुजरा है। स्कूलिंग तकरीबन एज 10-11 के लगभग थी जब पूरी फैमिली, वालिद साहब और सब लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, वो देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि हर चीज़ जो है वो किस्मत की बात है। अब मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन वो तकरीबन पूरी फैमिली वापस शिफ्ट हो चुकी है, और अब मैं उनको मिलने के लिए हर 4 महीने 6 महीने बाद वहाँ पर जाता हूँ। पैदाइश वहाँ की है, स्कूलिंग वहाँ पे है, लेकिन मोहब्बत अपने वतन से, इज़्ज़त अपने वतन में कमाई, और जो नाम जिस तरह भी लोग बड़ा प्यार करते हैं। मैं, आप यकीन करो कि अभी रिसेंटली मैंने बताया कुछ दिन पहले मैं यूके से आया, और जैसे ही जहाज़ लैंड करता है और पहला दरवाज़ा जब खुलता है, एक तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि अपने मुल्क आप वापस आ गए। दूसरा, जो
आप जब एंटर होते हैं तो जो मोहब्बत आपको सामने देखने वाला, एहसन भाई कैसे हैं आप, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और यहाँ तक कि उसके बाद आप आगे जब बढ़ते हैं, काउंटर्स पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो लोग बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं। तो ये तो फिर ये वाली मोहब्बत इज़्ज़त कहीं नहीं मिलती। उधर से एक अटैचमेंट ज़रूर है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूके इज़ माई सेकेंड होम। वहाँ पे अब्बा का घर है, अल्लाह का करम है कि वहाँ पे भी हम जाते हैं तो बड़ा ऐसे ही रहते हैं जैसे यहाँ पे रह रहे हैं। और वहाँ की गलियों से, वहाँ के हर एरिया से बड़ी एक अफिलिएशन है, मोहब्बत है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे अपने मुल्क में जो मुझे मोहब्बत मिलती है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। यही एक अट्रैक्शन है कि हमेशा दिल में अपने मुल्क के लिए ये चाहत रहती है कि दुआ रहती है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे और बहुत तरक्की भी हो हमारे इस मुल्क की। और फिर बड़े प्राउड हो के हम जब पाकिस्तानी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पे लोगों की मोहब्बतें समेटते हैं। तो ये तो इस मुल्क की वजह से ये सब कुछ। अच्छा, मोहब्बत का आप जिक्र कर रहे हैं, एक और भी मोहब्बत होती है जो आपने शायद ज़िंदगी में की होगी, जिसके लिए हमने सुना कि आप लव लेटर भी लिखते थे। वो क्या थी? मैं ये सोच रहा था कि ये चूँकि मुझे जानता है, बड़ा पुराना हमारा था, अभी किसी ना किसी तरह से कोई चीज़ ज़रूर निकाल के लाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्चा बड़ा साफ़ है, शराफत से भरपूर है, तो उसका हम ना ही तज़किरा करें बेहतर है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बड़ी नेचुरल फिनोमेना है कि इंसान को अपनी यंगर एज में और यूथ में अफिलिएशन होती है, मोहब्बतें होती हैं। और चाहे वो को एक्टर्स हों, उनमें भी हो सकती है, चाहे वो इस फील्ड से बाहर लोग हों, आपको हो ही जाती है। तो नेचुरली कोई ना कोई तो मोहब्बत तो ज़रूरी है। तो खत किसको लिखते थे आप? यार वो किस्सा आपको मैं मेरे ख्याल बहुत सुना चुका हूँ, लेकिन वो बचपन में किसी को लिख दिया और वो खत, वो कहते ना खत पढ़िया गया। अब का ज़माना, अभी मैसेजेस पकड़े जाते हैं, हमारे बचपन में खत पकड़े जाते थे। वो पकड़े गया तो वो अम्मी अब्बू को पता लगा और फिर बड़ी घर में जो है ना वो खूब, जिन्हें कहते हैं छितरौल, वो हुई। ये तेरी उम्र की है तो तू होने ही शुरू हो गया। तो मैं क्या फिर कदों शुरू हुई था, मैंने दसो। तो वो ये चीज़ें तो साथ साथ ज़िंदगी की चलती हैं यार। अच्छा, घर में कभी इस बात को लेके झगड़ा हुआ हो मिसेस के साथ कि आप इतने हैंडसम हैं और इतने बड़े सुपरस्टार हैं, क्यों है इस बात पे झगड़ा? नहीं, तो मैं हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कि इतना ऐसा मौका कभी मैंने दिया भी नहीं। ना ही ऐसा मौका इसलिए आया कि मेरी जो मिसेस है उसको मैं शादी से भी 4-6 साल पहले से जानता था। एक तो हमारी फैमिली की दोस्ती आपस में, यानी मेरे जो दादा थे और अल्लाह वरी की रहमत करे, उनके जो दादा हैं वो भी दोस्त थे और ये नेबर्स थे दोनों, यानी। और तब से फिर मेरे वालिद और इनके वालिद और इनकी फैमिली आपस में एक दूसरे को जान पहचान अच्छी, तो इसलिए हमारी जान पहचान। फिर मेरी दोस्ती, मैं समझता हूँ कि आपका जो स्पाउस, आपका जो पार्टनर होता है, अगर आप लोग दोस्त हैं और आपने बहुत सी बातें शेयर की हों एक दूसरे के साथ, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव शेयर किया हो, देखा हो, ट्रस्ट डेवलप किया हो, तो फिर प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाती हैं। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली एक्टर्स बड़ी सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन आपको मौका भी ज़रा कम ही देना चाहिए कि कोई आपसे घर में ऐसे। अच्छा, एक नाम जुड़ता है आपके नाम के साथ, नीलम मुनीर का। अच्छा, वो क्या है बात? कुछ है या ऐसे ही बातें बनी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। नीलम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और उनके साथ काम ये है कि समहाउ लोगों को मेरा और नीलम का कपल शायद बहुत पसंद है और मुझे वो ख़ुद भी एज ए फ्रेंड, एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी लगती है। और हमारी फ़िल्म जो मेरी 3-4 साल पहले छुपन छुपाई एक फ़िल्म आई, वो बहुत लोगों में वेल रिसीव थी। दूसरी फिल्म ईद पे चक्कर लगी और वो तो खैर कुछ फिल्मी पॉलिटिक्स की वजह से कुछ थोड़ा सा साइडलाइन हुई, पाकिस्तानी फ़िल्मों को स्पेस कम मिली और वो बड़ा एक लंबा वाक़या है, लेकिन उसमें भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर मेरे टेलीविज़न ड्रामे जब उसके साथ आते हैं तब भी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो समहाउ एक ऑन स्क्रीन अच्छा कपल बन गया। अदरवाइज शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल एंड अ वेरी नाइस गर्ल फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली और बड़ी हम्बल और ज़बरदस्त आर्टिस्ट है वो तो आई थिंक ये थोड़ा मायूब भी होता है कि जब आप ज़्यादा साथ दिखाई देते हैं तो लोग अक्सर नाम जोड़ देते हैं। अच्छा, ज़ाती ज़िंदगी में आपको क्या कुछ पसंद है? बड़ा सब कुछ। खूबसूरत घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, क्या कुछ पसंद है? अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे अच्छी गाड़ी या अच्छे कपड़े या अच्छा घर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से आगे भी इंसान को देखना चाहिए। मेरी नज़र में क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चॉइसेस और ज़िंदगी में बड़ा कुछ चेंज होता है।
लेकिन जो तालीम है और उसके साथ एक पर्सनालिटी जो आपकी निकलती है वो हमेशा एक डेप्थ के साथ बनती है, आपके एक तजर्बे के साथ, एक मयार के साथ, एजुकेशन के साथ बनती है। वरना सिर्फ इमारत या सिर्फ एक दिखावे की चीज़ के साथ शायद वो मुझे ये चीज़ें पसंद ज़रूर होंगी और हर एक को होती हैं, लेकिन एक होता है ना कि बहुत इम्प्रेस कर देना, और वो नहीं है। मालिक का बड़ा करम है कि उसने हमें इन चीज़ों से नवाजा है, ये उसका एहसान है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेल्फ ग्रूमिंग बड़ी मैटर करती है। यानी अगर अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर एक इंसान का इर्तिका का जो सफ़र है अगर ग्रूमिंग नहीं है तो फिर आई थिंक वो एक यूजलेस सी सिचुएशन है। यानी आपके पास एक अच्छी गाड़ी भी है और सब कुछ अच्छा भी है, लेकिन आप खुद आपकी पर्सनालिटी में ग्रूमिंग नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जो है वो बेकार हैं बाकी चीज़ें। सो इम्प्रेसिव चीज़ वो है कि जब आप इंटरनली आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो। म्यूजिक अच्छा लगता है? अरे म्यूज़िक तो हम किसको सुनते हैं? म्यूज़िक में बस कुछ भी अच्छा म्यूज़िक हो, चाहे वो किसी और मुल्क का भी हो, जो लैंग्वेज समझ नहीं भी आ रही हो लेकिन वो कानों को अच्छा महसूस हो रहा हो, तो बहुत सुनते हैं, बहुत पसंद आता है म्यूज़िक। और पाकिस्तान में तो हमारा इतना रिच म्यूज़िक है। अभी रिसेंटली जो मेरा पसूड़ी एक गाना है जो बड़ा फेवरेट गाना है, फिर आतिफ असलम का एक सॉन्ग है जो बड़ा फेवरेट है, फिर हमारे इतने ज़बरदस्त सिंगर्स हैं जैसे कि मैडम नूरजहां का आप नाम लेते हैं, नुसरत फ़तेह अली साहब का, राहत साहब का नाम, और नसीबो लाल साहिबा का नाम, और बड़े बड़े नाम हैं, आबदा परवीन साहिबा। ये तो इनकी तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। तो आई लव देयर म्यूज़िक एंड एनी टाइम एट एनी पॉइंट आई वुड लव टू लिसन टू देम। एंड देन ऑब्वियसली बॉलीवुड म्यूज़िक भी हम सुनते हैं, और फिर पॉप म्यूज़िक है, अंग्रेज़ी गाने जो हैं वो बड़े पसंद हैं आजकल के, क्योंकि बच्चे मुझे सुनाते हैं मेरे अंग्रेज़ी गाने, तो वो भी हमारे जो एक वो कहते हैं ना सब एक मजमुआ जो है गाड़ी में या कहीं पे घर में चलता है, तो वो सब मिला जुला है। तो कोई गाना हमें सुना सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया, लेकिन वो मैं हमारी एक आजकल एक फ़िल्म जो मेरी रहबर आई उसका गाने उसके बड़े ज़बरदस्त हैं, और इनफैक्ट वो हमने बहुत आउटडोर उस गाने का शूट किया, गवादर के पास तक गए और फिर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, वो सब जगह। 2 लाइनें उसकी सुना दें हमें, हम दिखा भी देते हैं। जिंदगी तेरे बिना थी अधूरी, पूरी हुई मिलकर तुमको। अच्छा ये बताएं हसन कि आपने एक्टिंग भी कर ली, एज ए प्रोड्यूसर भी आपने काम किया, अब ये बताएं कि आप एज ए होस्ट भी एक बड़ा अच्छा शो करते हैं, वहाँ पे लोगों से बड़े बड़े अजीब से काम करवाते हैं, तो ये सारा आइडिया आपका होता है या होस्ट बनने का एक्सपीरियंस कैसा है? और गेस्ट बड़े मज़े से आपकी बातों का जवाब देते हैं? हाँ, ये अब इसका ये समझ में नहीं आता मुझे कि कैसे जवाब देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी सबसे एक सर्टन एफिलिएशन दोस्ती है, जो भी हमारे सेट पे आते हैं आर्टिस्ट, जो भी वो तकरीबन मेरे दोस्त हैं सारे, और अगर बहुत क्लोज फ्रेंड्स रही तो कहीं ना कहीं मुलाकात शोबिज़ में मुझे भी जानते हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि आप एज ए होस्ट जो आपका गेस्ट होता है उसको इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपसे जूनियर हो, सीनियर हो। वंस ही इज़ योर गेस्ट देन ही डिज़र्व्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आप भी ये बात समझते हैं, आप होस्ट हैं खुद, आप इतना अच्छा शो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप भी बड़ा लोगों से मोहब्बत करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो जब आप इज़्ज़त देते हैं तो जो दूसरा फ्रंट पे शख्स होता है वो भी आपको इन रिटर्न इज़्ज़त देता है और फिर खुल के आपके सामने बात करता है। उस प्रोग्राम का होस्टिंग का पार्ट तो मेरा ही है यकीनन, लेकिन उसमें जितनी भी गिमिक्स हैं वो हमारी एक पूरी टीम है जो उसको लेके आगे चलती है, और वो बड़ा पॉपुलर भी है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो ये तो लोगों की बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, होस्ट के लिए तो सारे गेस्ट बड़े अहम और काबिल एहतराम होते हैं, आपको किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? अच्छा, चूँकि मैं किसी एक का नाम लेते हुए तो बहुत ऑड लगता है, बट आई वुड लाइक टू टेक अ फ्यू नेम्स। तकरीबन मेरे हर शो में से कोई ना कोई ऐसी बात या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है कि लोग बड़ा उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया, वसीम अकरम और मोइन ख़ान का शो था एक, वसीम अकरम उनकी बेगम का शो था, फिर शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का शो था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बड़े दबंग हमारे जो ये इंटरनेशनल स्टार्स हैं, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इन लोगों को इज़्ज़त देना। फिर अभी रिसेंटली जहांगीर खान का मैंने इंटरव्यू किया अपने शो में, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हुमायूं और फहद का शो, क्योंकि वो दोनों हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं नेचुरली, तो बजाय कि मैं उनसे कोई बात करता हूँ, दोनों ने मेरी बड़ी किट लगाई उस शो में, तो मुझे बड़ा मज़ा भी आया, इन्जॉय भी किया, लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया।
उसके साथ साथ जितने भी शोज़ हमने किए हैं उसमें बड़े अच्छे डांसेस और बड़े अच्छे गपशप और सभी के साथ बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। एहसन साहब, अपने शो में तो आप ये मिर्च जो है वो खिलाते हैं सबको, खुद भी खाते हैं, रखी हुई हैं आपने? यार मैं ये मिर्चें जब मैंने देखी ना तभी मुझे समझ आई कि आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं। अच्छा ये है वो कहते हैं ना देसी मिर्च जड़ी होती है। हाँ। ये देसी मिर्च है, बहुत तिखी, बहुत तेज़ होती है। हम लोग अपने शो में रखते हैं वो बड़ी वाली मिर्च, वो ज़रा कुछ तो रहम करो यार। अच्छा, ये नहीं आप खा सकते? आप खिलाएंगे तो हम ये भी खा लेंगे यार, ट्राई थोड़ा सा ट्राई तो करें, क्या लगता नहीं है? क्या चाहते हैं आप कि मेरी ईद जो है वो बस हाँ देखें ना, अभी तो ईद है, आपने मैंगो रखे हुए हैं, गोश्त अभी बन वो रहा है। बन रहा है, आ जाएगा वो तो आपको। देखिए मैं आपको इतना ज़बरदस्त बकरे का गोश्त खिलाऊंगा और मैंने उसे कहा जो बेस्ट हिस्सा होता है वो मेरे भाई के लिए बनाए, इन भाई के लिए भी। तो तुसी सानू मिर्चा खुआ रहे हो यार। उसामा साहब भी आ गए हैं मेहमान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ भाई अभी भी हमारे आ और भी मेहमान आएंगे यहाँ पे, और उसामा हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ऐसे ये बताएं कि खाने में क्या पसंद करते हैं? मिर्चों के अलावा सब कुछ खा कढ़ाई शढ़ाई बकरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देसी टिपिकल जो खाना हमारा होता है। मुझे कीमा अगर अच्छा बनाओ तो सुरीला सुरीला, करेले नहीं करेले भी वैसे खाते हैं बड़े शौक से, लेकिन कीमा बनाओ तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो आजकल ये ईद के ऊपर स्पेशल मेरी वालदा बनाती है, रान रोस्ट करती हैं घर में, तो वो मेरा फेवरेट है क्योंकि वो रान का जो एक गोश्त होता है ना, बड़ा सॉफ्ट सा टेंडर गोश्त। अदरवाइज हम मीट लवर्स हैं यार। मुंह में पानी आ गया यार, आ गया ना, ये देखें ना ये। अच्छा उसके अलावा आई एम अ फूडी, आपको पता है हम लाहौर के ओरिजिनली यहीं के जमपल है, तो वो फूडी तो आप होते हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है कि इस फील्ड में रह के अपने आप को थोड़ा सा हर वक्त मेंटेन रखना कि यार अब 2 दिन कुछ नहीं खाना, 3 दिन कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो इसलिए हाथ हौला रखी थे, वरना अदरवाइज आई लव फूड। कराची में तो ये चीजें नहीं मिलती हैं, फिर कराची में कराची का खाना बहुत अच्छा है। आप कराची का खाना, कराची से खाना नहीं कहीं मिलता आपको। मैं आपको बताऊं, कराची की बिरयानी, कराची की निहारी, अच्छा, और वो तो आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलती। अच्छा, कराची और लाहौर शहर में क्या फर्क महसूस करते हैं खाने के लिहाज से या माहौल के लिहाज से? अच्छा ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, मैं आपको इस बात का यहाँ पे इंकशाफ करूँ कि कराची जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। अच्छा। उसकी वजह बताता हूँ। हमारा लाहौर का खाना तो बहुत ज़बरदस्त है, मशहूर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम सब यहीं के लोग हैं तो फ्लेवर कहीं ना कहीं मिलता है। कराची में बड़े मुख्तलिफ जगहों से लोग आबाद हुए हैं, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ जो हैं वो मज़हब भी वहाँ पे हैं, और बहुत सी वैरायटी लोगों की। यानी आपको वहाँ पे पठान भी बहुत मिलेंगे, आपको पंजाबी भी बहुत मिलेगा, आपको वहाँ पे मेमन बहुत मिलेंगे, आपको कराची आए उर्दू स्पीकिंग लोग मिलेंगे, आपको सिंध के बड़े हमारे प्यारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे। अब वो सारे पारसी फूड जो है वहाँ पे बड़ा पॉपुलर है, और वो जब सारे खाने आप उनके टेस्ट करते हैं तो फिर आप सोचते हैं यार ये वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलती। सो फूड वाइज आई बिलीव दैट कराची हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड दे हैव वंडरफुल फूड। अच्छा ये बताएं कि बना क्या लेते हैं खुद, क्या कुक करें तो क्या कर लेते हैं? कढ़ाई बना लेते हैं या क्या बना लेते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाने का शौक है? खाने का यार ज़्यादा अंडा बना सकता हूँ या चाय बना देता हूँ, मुझसे तो कोई बेवकूफ़ नहीं बनता। अच्छा, बेगम को कभी फरमाइश करते हो घर में, मूड हो के घर में खाया जाए? हाँ, तो फिर क्या? बेगम इंग्लिश फूड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। अच्छा। और वो केक्स बड़े जो फैंसी केक होते हैं ना, वो इतने खूबसूरत बेक करती है कि उनको काटने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो एक पूरा आर्ट होता है। तो वो मैं सोचता हूँ यार इसको कौन जालिम काटेगा, पूरी रात लगी इस केक के बनने में। अब कौन इसको, वो बच्चों की बर्थडेज होती हैं या उसकी फ्रेंड्स की, तो वो शी बेक्स केक्स। देसी फूड में शी इज़ नॉट वेरी गुड, तो हमारा एक शेफ़ जो है बड़ा अच्छा है, तो वो हमें ज़्यादा खाने बनाते हैं, लेकिन एक सुपरविजन बेगम की ज़रूरत। ऐसा ना आपकी फैमिली ने इजाज़त दे दी शोबिज़ में आने के लिए? अच्छा, चूँकि आप जानते हो यार कि आई वॉज वेरी वेरी यंग, और वो पेरेंट्स बड़े पोजेसिव होते हैं अपने बच्चों के करियर को लेके, और उनकी ख्वाहिश पहली यही होती है कि या तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, फ़ौज में चला जाए, जो बड़ी रिस्पेक्टेबल काम है। और मेरी सिलेक्शन भी हुई, और समहाउ मेरा आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे ये लगता था कि यार मुझे बस एक आर्टिस्ट बनना है, एक एक्टर बनना है, और ये लाइफ बड़ी मुझे इंस्पायर करती थी। और मैंने ख़ुद बड़ा छुप छुप के कोशिश की कि मुझे काम मिल जाए इनके रोकने के बावजूद भी, और वो जब काम कुछ मिल गया तो फिर मुझे इनको बताना पड़ा कि मैं तो जी जा रहे हैं काम करने लिए। तो ये दोनों तो परेशान हो कि उनको लगा कि कोई
ये बेवकूफ़ सा बच्चा है और ये ऐसे शुगल मेले में इसको मिल गया है काम और वापस आ जाएगा। वो हम बाहर चले गए एक फ़िल्म करने, ये परेशान, मेरे वालिद साहब बड़े कि पता नहीं हम बिल्कुल निकल गया। आप मतलब सोचें ना 18-17 साल पहले कोई बच्चा 17-18 साल का बच्चा निकल जाए, गायब हो जाए कि बाहर के मुल्क, तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते। तो बस इस तरह था शुरू में, इट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और दूसरा मेरी अम्मी की बड़ी सादी तबीयत है, शी इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन और बड़ी घरेलू हैं और वो इस मामले में बिल्कुल उनको नहीं इस फील्ड का पता। जो बाहर से आप बातें सुनते हैं और जो देखते हैं बस वही उस पर बिलीव। तो वो तो मुझे कहने लगी कि कितने चला गया है, की हो गया तेनों, की कर रहे हैं काम है कि। तो वो मैंने कहा अच्छा चले। अब माशाल्लाह ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप को लोग देखते भी हैं कि इज़्ज़त करते हैं, प्यार मोहब्बत मिलता है, लोगों का बड़ी मोहब्बत मिलती है, तो फिर वो लोग बड़ी खुशी से, अब वो बड़ा उनको फ़ख्र महसूस होता है कि जब उनको लोग पहचानते ही मेरे नाम से कि ये एहसन के पेरेंट्स हैं, या तो फिर ज़ाहिर अब तो उनकी दुआएं साथ होती हैं। उनकी दुआएं पेरेंट्स के होना बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। एहसन, आप सोशल बड़े हैं, दोस्तियाँ किन किन के साथ हैं इस फील्ड में? यार वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में दोस्ती वो होती है जब आप कुछ भी ना हो और तब जो आपके दोस्त बनते हैं वो आपके बहुत करीब होते हैं और ज़्यादातर वही इम्पैक्ट भी आपकी ज़िंदगी में छोड़ते हैं, वो आपको याद भी रहते हैं और उनके साथ आपकी एक कनेक्शन भी रहता है ज़िंदगी में। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो फिर तो जाहिर है सभी दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो भी एक दोस्ती मैं समझता हूँ ज़रूर होती है। लेकिन मैं जब अपने पुराने लोगों से मिलता हूँ तो मुझे एक अजीब बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि यार क्योंकि ये मुझे इन एंड आउट जानते हैं, या आपसे मुलाकात हुई, या अब आपसे मैं इतने सालों बाद भी मिला हूँ तो मुझे ये लगा नहीं कि मैं कोई 8 साल बाद या 10 साल बाद किसी के साथ बैठा हूँ। आप समझ रहे हैं, ये बड़ा कम कनेक्शन होता है। और मुझे लगता है मेरा बेहतरीन दोस्त तो आरिफ है जो मेरे साथ 20 सालों से है। अब वो ऐसे है कि मेरा काम भी सारे वो करता है और उसके होते हुए किसी दोस्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं तो समझता हूँ बाकी दोस्तियाँ भी बहुत सारी हैं। ये देखिए हमारे भाई मेरे इतने प्यारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, आप दोस्त हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं सब दोस्ती। मेरी तो एक आदत भी ऐसी है कि बड़ी जल्दी अपनाइयत एक वो है। हाँ, वो एक नेचर है ऐसी। जब एक आर्टिस्ट बनने आता है, कोई भी फनकार बनने आता है तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपने भी की। मुश्किल कब लगी कि नाकाम हो गया हूँ, कभी ऐसा हुआ? काम ही नहीं आता था यार शुरू में। मुझे ऐसा लगता था ये मैंने क्या काम शुरू कर, शौक बड़ा है एक्टर बनने का, काम नहीं आता, ये वाली फीलिंग होती थी। क्योंकि शुरू में ही मुझे इतने बड़े डायरेक्टर्स फिल्म के, टीवी के भी, मैंने अयूब खाबर साहब के साथ शुरू में ही काम कर लिया, अशफाक अहमद साहब का स्क्रिप्ट शुरू में ही मुझे मिल गया, वो ज़ैनुल आबिदीन के एक डायरेक्टर पीटीवी के वो मिल गए। फिर फिल्म में मैंने इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म साइन कर ली, सैयद नूर साहब की फिल्म साइन कर ली, संगीता मैडम की फिल्म कर ली। ये सारे आप जानते हैं कि उस ज़माने के आज से 15, 18, 20 साल पहले दे वर द मेन पीपल ऑफ द इंडस्ट्री। सो इनके साथ तो काम करने का मकसद ये था कि सब ट्रेंड एक्टर्स हैं और मैं बिल्कुल नया खड़ा हूँ, तो मुझे तो एक लाइन बोलते हुए भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उसमें यह है कि डिटर्मिनेशन, मुझे लगता है कि आप को अगर शौक़ है और आप अगर कोई भी इंसान किसी भी काम में अगर फोकस और सोचे कि मुझे ये करना है, तो आप फिर ढीठ हो जाएं उस काम में। यानी कोई लुकिंग बैक नहीं होना चाहिए, यू हैव टू जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड मूव ऑन। बहुत सा टाइम आता है और किसी की भी ज़िंदगी, हर इंसान की अपनी एक जर्नी है और किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है, उसको हर तरह के अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। असल चीज़ ये है कि आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहें और आप एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको आपका जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ मिल जाएगी। फिल्म में सबसे ज़्यादा आसान सीन कौन सा लगता था, डायलॉग बोलना या डांस करना? गाने पिक्चराइज करने का बड़ा एक अलग मज़ा है कि आप एक लड़की के लिए आप गाने गा रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं और पहाड़ पे घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और स्टेप्स हो रहे हैं, तो ये इसका एक अलग मज़ा है। वो आज तक है। मेरी अभी जो फिल्म रहबरा आई उसमें मैंने बड़े एक रोमांटिक हीरो का रोल किया और उसमें जो गाने पिक्चराइज हुए वो मुझे बड़े पसंद है। सो आई लव डूइंग सॉन्ग्स। ऑब्वियसली आप इमोशनल सीन्स मुझे करने का बहुत मज़ा आता है, बट आई ऑल्सो लाइक डूइंग एग्रेसिव सीन्स एंड कॉमेडी भी पसंद है, लेकिन गानों का एक अपना मज़ा। कभी इंडिया फिल्म करने का मौका मिले तो कर सकते हैं? मुझे 2 बार, इनफैक्ट 3 मरतबा मेरे पास एक तो स्क्रिप्ट भी, मैं फिल्म साइन भी कर चुका था और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करता कि बड़ा एक मायूब मुझे लगता है कि आपका काम बोलना चाहिए। आप ख़ुद अगर अपनी तशहीर करते हैं या ख़ुद ये बातें करते हैं कि मुझे फ़लाँ ने बुलाया और फ़लाँ, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी
मैं समझता हूँ कि आपकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, क्योंकि आपका स्किल जो होता है ना एज एन आर्टिस्ट, वो अगर बोले तो तब आपको लगता है कि वाकई यार आप में कुछ वज़न है। खुद से बातें करने में कोई वज़न नहीं होता। तो मुझे 2-3 मरतबा मेरी मीटिंग्स भी हुई, मैं बॉम्बे भी गया और बड़े नामवर डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग हुई। और फिल्म एक जगह तो फिल्म साइन करके स्क्रिप्ट मेरे पास था, लेकिन हमारी चूँकि आपस में जो भी एक पॉलिटिकल इश्यूज़, और मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नेचुरली आपकी जो अपनी मुल्क की पॉलिसी जो होती है, मुल्क की फेवर में जो चीज़ें होती हैं, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। सो आई गेस कि वो आना जाना, रुकना, काम ना होना एक दूसरे के साथ, वो बीच में हर्डल्स बहुत रही मेरी 2-3 मरतबा, तो इस वजह से वो रुक गया। वरना बहुत से आर्टिस्ट ने किया भी, और हम ये बिलीव करते हैं कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, अपने आर्ट को उसको दिखाना चाहिए। बट देन वे यू लिविंग और जो सिचुएशन होती है उसका भी मुल्क का ख्याल पहले होना चाहिए किसी और चीज़ से। पहले आपका वतन आता है, और अपने वतन के लिए तो कोई भी हो वो अपनी जान तक भी दे देता है यार। उसामा साहब बताएं, दोस्त तो आप हैं एहसन साहब के, एज ए आर्टिस्ट भी उनको आप पसंद करते हैं, कितना करते हैं? सबसे पहले जो हमारी ईद है वो एहसन भाई के बगैर इनकम्प्लीट है। हमने एक दफ़ा ईद वाले दिन आना ही आना है, या अगले दिन आना है, एक दफ़ा हमने एहसन भाई को मिलना ज़रूर है। और जहाँ तक इनकी आर्ट या बीइंग एन आर्टिस्ट वाला जो एक एस्पेक्ट है, हम लोग आज भी जो पूरी फैमिली बैठ जाती है कि हमने इनका ड्रामा आजकल फ्रॉड है, उसने एक धूम मचाई हुई है, हमारा दिल होता है कि यार हम सारे बैठ जाएं। मतलब मेरी फियांसे मुझे फोन करके पूछ रही होती है तुमने ये एपिसोड देखी है नहीं देखी है। तो हम पे हर जगह से प्रेशर है कि यार हमने बिल्कुल एहसन भाई को, और बहुत हम इंजॉय करते हैं। मुझे तो इनका जो उडारी वाला एक करैक्टर था वो ही आज तक हम लोग नहीं भूल सके कि यार वो बहुत पैशनेटली इन्होंने किया, और बहुत मज़ा आया उस करैक्टर में। बड़ी मोहब्बत है जी इनकी। ये सब दोस्तों का, भाइयों का प्यार है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगा कि मैं अपना हर कैरेक्टर, कोई भी काम करूँ, चाहे वो लोगों की नज़र में छोटा काम है, बड़ा काम है, कुछ भी है, उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी मैं किसी भी कैरेक्टर में। लेकिन वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो निकल आते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन मेहनत मैं हर काम में बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये एक मेरी आदत है। अच्छा, ईद के लिए कोई मैसेज दे दें? ईद तो सबसे पहले तमाम आपके शो जो इस खूबसूरत शो को देखते हैं और इस चैनल को देखते हैं, तो उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, तमाम लोग जो देख रहे हैं। ईद का अगर हम मकसद देखें तो कुर्बानी कहा जाता है, और कुर्बानी का जो जज्बा है वो हम सब मुसलमानों में होना चाहिए, और हमें ये हुक्म है कि हम एक दूसरे के लिए सोचें। इसका मकसद आप देखिए कि ये जो हम कुर्बानी करते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों में, अपने हमसायों में, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बांटते हैं, तो ये अल्लाह ताला हमारी ट्रेनिंग करता है कि आप एक सोशल एनिमल हैं। हम सोशली जब तक सबका हक अदा नहीं करेंगे तो हम मुकम्मल नहीं होंगे। तो एक दूसरे का ख्याल कीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत दीजिए एक दूसरे को, और यही ज़िंदगी का एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है। आप को पता भी नहीं चलता कब वक्त गुजरा और चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसलिए सब लोगों से मोहब्बत ज़रूर कीजिए, चाहे वो एक ऑर्डिनरी इंसान है या वो बहुत स्पेशल आपके लिए, तो मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है।